لاکھوں یہودیوں کو ہلاک کیا۔ یہ اقدام یورپی یہودیوں کے قتل عام پر مبنی نازی پالیسی کا حصہ تھا، حتمی حل سے موسوم کیا۔ اگرچہ نازیوں نے یہودیوں کو جرمنی کے لیے سب سے بڑا خطرہ تصور کیا تھا اور وہ نازی نسلی امتیاز کا بنیادی نشانہ بنے، مگر نشانہ بننے والے دوسرے افراد میں آج میں ریئیکٹ کرنے جا رہا ہوں ہولوکاسٹ پر کہ ہولوکاسٹ کیا ہے، یہ اصطلاح کب شروع ہوئی۔ 1937 میں یورپ میں تقریباً 62 لاکھ یہودی آباد تھے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد 1945 میں جو جرمن تھا اس نے یہودیوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ہر 5 یہودیوں میں سے 3 یہودیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ ہولوکاسٹ کے بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے خود یہودیوں کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہولوکاسٹ سے مراد وہ مقتولین ہیں جو جرمن کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اس کے برعکس ایک رائے اور بھی ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مقتولین سے مراد صرف یہودی مقتولین نہیں تھے، بلکہ عام لوگ جو ورلڈ وار 2 میں جو قتل ہوئے وہ بھی یہود کے ساتھ شامل تھے۔ یہود جو ہے یہ دنیا میں سب سے خبیث ترین قوم ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں یہود کو ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ اسلام میں بھی یہود کو انبیاء کا قاتلین قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے یہود کے اوپر ذلت اور مشقت کو مسلط کر دیا ہے۔ یہود چاہے جس دور میں بھی ہوں، اللہ رب العزت نے ان کو رسوا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہولوکاسٹ کیا ہے، کس طرح ورلڈ وار 2 میں جرمنی اور اڈولف ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ڈسکور دا ورلڈ کے معزز دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہولوکاسٹ کیا ہے؟ یہودی اور دیگر مغربی اقوام ہولوکاسٹ کا نام سن کر کیوں خوفزدہ ہوتے ہیں؟ آج کی زندہ ویڈیو میں ہم آپ کو ہولوکاسٹ کی مکمل تفصیل سے آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔ اس بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے، یہ جاننے سے قبل دیکھنے اور سننے والوں سے صرف اتنی التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز دوستوں، سن 1933 میں یورپ میں یہودیوں کی آبادی 90 لاکھ سے زائد تھی۔ یورپ کے بیشتر یہودی ایسے ملکوں میں رہتے تھے جن پر دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی نے یا تو قبضہ کر لیا یا پھر انہیں اپنے زیر اثر کر لیا۔ جرمن اور ان کے اتحادیوں نے سن 1945 تک یورپ کے ہر 3 میں سے تقریباً، مگر نشانہ بننے والے دوسرے افراد میں 2 لاکھ کے لگ بھگ روما خانہ بدوش بھی تھے۔ جرمن نسل سے تعلق رکھنے والے ذہنی اور جسمانی طور پر معذور کم از کم 2 لاکھ افراد بھی جو اداروں کی طرز پر قائم مراکز میں رہائش پذیر تھے، یوتھینیسیا پروگرام یا رحم دلانہ موت کے نام پر ہلاک کر دیے گئے۔ ہولوکاسٹ یہودیوں سے متعلق دوسری جنگ عظیم کے دوران سبق آموز واقعات کا ایک مجموعہ ہے۔ یہودی وہ قوم ہے جن کے بارے میں دنیا کے کسی کونے میں کوئی اچھی رائے نہیں پائی جاتی۔ شیکسپیئر جیسے ڈرامہ نگار نے بھی شائلاک نامی سود خور اور ننگے انسانیت کردار کو یہودی مذہب کا پیراہن پہنا ہے۔ قرآن مجید نے یہودیوں پر جو سب سے بڑا الزام دھرا ہے وہ قاتلین انبیاء علیہ السلام ہے، اور حد تو یہ ہے کہ ان یہودیوں نے محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادہ قتل سے بھی دریغ نہ کیا۔ دنیا پر مسلمانوں کے 1000 سالہ دور اقتدار میں یہودی بہت عافیت میں رہے، اور یہ دور ختم ہوتے ہی انہوں نے اپنی سازشوں کا نشانہ مسلمانوں کو ہی بنایا اور فلسطینیوں کی کمر میں چھرا جا کھونپا۔ دنیا کی ہر قوم ان کی پس پردہ ذہنیت سے خائف ہے اور انہیں اپنے سے دور رکھنا چاہتی ہے، اس لیے مغربی اقوام نے انہیں اپنے ہاں جگہ دینے کی بجائے مسلمانوں کے سروں پر لات تھوپا ہے۔ معزز دوستو، یہودیوں کی ذہنیت، ان کی تاریخ، ان کے عقائد اور ان کا انجام اس قرآنی آیت کا مصداق ہے کہ ہم نے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی ہے۔ ہولوکاسٹ یونانی الفاظ سے ماخوذ ایک مرکب ہے جس کا مطلب مکمل طور پر نظر آتش کر دینا ہے۔
इससे मुराद यहूदियों का ये दावा है कि कमोबेश 60 लाख यूरोपीय बनी इसराइलियों को दूसरी जंग अजीम के दौरान कत्ल किया गया, जिसका इल्जाम नस्लकुशी के ज़िमन में नाजी जर्मनों पर लगाया जाता है। कुछ मुहक्किकीन के नजदीक होलोकास्ट से मुराद सिर्फ यहूदी मकतूलीन ही नहीं है, बल्कि वो तमाम मकतूलीन जंग अजीम सानी हैं जो इत्तेफाकी कत्ल नहीं हुए, बल्कि जिन्हें नाजियों ने किसी प्रोग्राम के तहत बाकायदा से कत्ल किया, जिनमें दूसरी अक़वाम के चीदा चीदा लोग, मजहबी रहनुमा, जंगी कैदी, हम जिनसियत के दौरान माजूर होने वाले मर्द और दीगर अस्करी और सियासी मुखालफिन भी शामिल हैं। इस तारीफ के तहत होलोकास्ट के मकतूलीन की तादाद 1 करोड़ तक जा पहुंचती है। इन दोनों आरा में कौन सी करीने कयास है? यहूदी सच बोलते हैं या दीगर मुहक्किकीन? और क्या यहूदियों ने दुनिया की हमदर्दियां हासिल करने के लिए, खुद को मजलूम साबित करने के लिए दूसरे मकतूलीन को भी अपना तो नहीं बना लिया? ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। सयूनियों के मुताबिक जंग अजीम दोम के सालों कबल से यहूदियों को सिविल सोसाइटी से नाबूद करने की मंसूबा बंदियां हो रही थी। 1930 की दहाई में ऐसे ऐसे कवानीन बनाए गए कि आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों के मुआशी, मुआशरती और कानूनी हकूक मान पड़ने लगे और उन्हें जर्मन यूरोपीय मुआशरे में तन्हा किया जाने लगा। इन कवानीन का मकसद यूरोप को गैर यूरोपियों से पाक करना था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सन 1933 में कवानीन का एक मजमुआ मंजूर किया गया, जिसके मुताबिक अहम इलाके और अहम मनासिब यहूदियों से खाली करा लिए गए। चुनांचे ज़रई फार्मों में यहूदी मज़ाहिरीन से लेकर कचहरियों में यहूदी वकला और यहूदी जजों तक को बाहर निकाल दिया गया और इन्हें बुरी तरह मारा पीटा गया। स्कूलों, कॉलेजों और अखबारात के दफातर और मुख्तलिफ तंजीमों में से भी इन्हीं कवानीन के तहत यहूदियों का इखराज अमल में आया। सन 1935 में हिटलर ने एक तकरीर के जरिए यहूदियों को रह सहित तमाम सिविल हकूक से भी महरूम कर दिया। इस मकसद की खातिर ऐसे कैंप्स बनाए गए जहां यहूदियों को गुलाम बनाकर ले जाया जाता और उनसे इतनी मुशक्कत कराई जाती कि वो थका थका कर या फिर बीमार होकर और भूखे रखकर मार दिए जाते। बच जाने वालों पर तिब्बी तजुर्बात करके उन्हें माजूर कर दिया जाता और फिर उन्हें मौत की आगोश में पहुंचा दिया जाता। इस सब के बावजूद भी अगर कुछ लोग बच जाते तो नाजी जर्मन उन्हें गैस चैम्बरों में डालकर हलाक कर देते। यूरोप के पास अजायब घरों में नाजी जर्मनों के गैस चैम्बरों की बाकियात अब भी ज़ायरीन के लिए रखी गई हैं। जंग अजीम दोम के दौरान जर्मन नाजियों ने होलोकास्ट के लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल की, उसे मुराद यहूदियों के मसले का आखिरी हल था। ये इस्तिलाह जर्मन जुबान से मुतल्लिक थी। सयूनी तारीखदानों के मुताबिक जर्मनी का हर इदारा यहूदियों के इतने बड़े कत्ल के प्रोग्राम में मुलविस था। जर्मन वजारत दाखिला और मसीही चर्चेज ने यहूदियों का पैदाइशी रिकॉर्ड दिया और इस बात का तायुन किया गया कि कौन कौन सी बस्ती में कौन कौन यहूदी है। जर्मन महकमे डाक ने वो खतूत मुतलका हुकाम तक पहुंचाए और जर्मन वजारत खजाना ने यहूदियों की जायदादों की तफसीलात मुहैया की। जर्मन कारोबारी इदारों ने यहूदी ताजरों, यहूदी मुलाजमों और यहूदी मजदूरों के बारे में जामे मालूमात फराहम की। जर्मन महकमे मवासलात ने यहूदियों के उनके हलाकती कैंपों में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट और रेलगाड़ियां मुहैया की। यहाँ तक कि जर्मन जामियात ने यहूदी तुलबा को दाखिला देने से इनकार कर दिया और यहूदी तालीमात और इसराइली लिटरेचर को नजर आतिश कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, यहूदियों का कत्ले आम उन तमाम इलाकों में हुआ जो नाजी जर्मनों के ज़ेरे कब्जा थे, जहां अब कमोबेश 35 यूरोपीय ममालिक की सल्तनतें कायम हैं। इससे कबल यहाँ यहूदियों की बस्तियां आबाद थी और सन 1939 में 7 मिलियन यहूदी नफूस यहाँ हंसते बसते घरों में आबाद थे, जिनमें 5 मिलियन को यहाँ कत्ल कर दिया गया। पोलैंड और रूस में कत्ल होने वाले यहूदियों की तादाद इसके अलावा है। इस दौरान फ्री मैसन्स को भी गिरफ्तार करके हलाकती कैंपों में भेजा गया। हिटलर का पुख्ता नजरिया था कि फ्री मैसनरीज भी यहूदियों में से हैं। चुनांचे इन कैंपों में उन्हें जबरदस्ती सुर्ख कपड़े पहनाए जाते और 1 लाख से 2 लाख की तादाद में उन्हें इन हलाकती कैंपों में नाजियों ने कत्ल किया। नाजी जर्मन जिन जिन इलाकों को फतह करते वहां से यहूदियों को खत्म करते जाते। यहाँ तक कि जब पोलैंड को फतह किया गया तो इतनी बड़ी तादाद में यहूदियों को कत्ल करना आसान न था। चुनांचे तवील गौर एवज के बाद कम वक्त और कम लागत में कत्ल करने के लिए जहरीली गैस इस्तेमाल की गई। पोलैंड की सरजमीन कत्ल यहूद की बहुत बड़ी अमीन है। 6 हलाकती कैंपों से शुरू होने वाले होलोकास्ट के पोलैंड समेत मकबूजा ममालिक में 15,000 से ज्यादा कैंप बन गए।
इन कैंपों में यहूदियों से बदतरीन मुशक्कत ली जाती और फिर जरूरत खत्म होने पर उन्हें कत्ल कर दिया जाता, जबकि बेशुमार यहूदी दौरान मुशक्कत ही दम तोड़ देते। प्यारे दोस्तों, शुरू में ये कैंप्स शहरों से बाहर थे, लेकिन ट्रांसपोर्ट के वसी इखराजात के बायस बाद में इन कैंपों को यहूदी आबादियों के करीब ही मुंतकिल कर दिया गया। इससे शदीद तर हालात रूस के मफतूहा इलाकों में भी पेश आए। यहाँ यहूदियों को जिंदा भी जलाया गया और जब गोली मारने और जिंदा जलाने का सामान मुयस्सर न आया या उसे महंगा करना तस्वुर कर लिया गया तो लाखों यहूदियों को रूस के शदीद तरीन ठंडे इलाकों में बेआबो गया और तन्हा छोड़ दिया गया और ये लोग यकबस्ता और जानलेवा ठंडी हवाओं से जिंदगी की बाजी हार गए। इस सब के बावजूद 1941 के आखिर तक रूस के सिर्फ 15% यहूदी मारे गए थे। इस रफ्तार को तेज करने के लिए एक बार फिर वसी पैमाने पर जहरीली गैसों का तजुर्बा किया गया और जाहिर है ये तजुर्बा शहरी इलाकों में मुमकिन नहीं था। चुनांचे इसके लिए शहर से बाहर बहुत बड़ी बड़ी जगह बनाई गई जहां यहूदी नस्ल को नेस्तो नाबूद करने का अमल सालों तक दोहराया जाता रहा। यहूदियों ने इस सारे जुल्म सितम के खिलाफ आवाज भी बुलंद की, लेकिन बेसूद। कुछ कैंपों में नौजवान यहूदियों ने हथियार तक भी उठाए, लेकिन नाजी जर्मन उस वक्त पूरी दुनिया से कंट्रोल ताकत का तूफान था, तो यहूदी उससे कैसे जान छुड़ा सकते थे। फिर एक पहलू ये भी है कि दुनिया के किसी कोने से उस वक्त और आज भी यहूदियों के हक में कोई आवाज बुलंद नहीं हुई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तारीख गवाह है कि यहूदी कौम ने जिस बर्तन में खाया उसी में सुराख किया। हर कौम को डसने की कोशिश की, हर ग्रोह को ब्लैकमेल किया, दौलत की खातिर इंसानियत को दांव पर लगाया। दूसरी जंग अजीम के इस अलमनाक पहलू का दूसरा तारीख तरीन रुख ये है कि जंग अजीम के दोनों मुतहारिफ फरीकों को सरमाया फराहम करने वाली बहुत बड़ी फर्म यहूदियों की ही मिल्कियत थी। यहाँ कि क्या यहूदी अपने हम मजहब बल्कि हम नस्ल रिश्तेदारों पर बेपनाह जुल्म होता देखकर सरमाए की फराहमी बंद नहीं कर सकते थे। करीब था कि यहूदियों की नस्ली कुरे अर्ज से नाबूद हो जाती, लेकिन अल्लाह ताला ने कत्ल अंबिया, नाशुक्री, जिल्लत व मस्किनत और इबरत के इस निशान को क़यामत तक बाकी रखना है। शायद इसी हिकमत के तहत मशीयत ईज़दी ने इन्हें फलस्तीन में आरजी जगह दी ताकि इनकी नस्ल क़यामत तक बाकी रहे। अगर इनमें थोड़ी सी अकल होती तो इस जगह को गनीमत समझकर अमन और सुकून से रह लेते। फलस्तीनियों ने इन्हें खा तो नहीं जाना था, लेकिन हैरत है इनकी दानिश पर कि अपने ही मेजबानों पर आज भी इन्होंने अरसा हयात तंग कर रखा है। हम चढ़ते हुए सूरज के पीछे उस दिन को आंखों से देख रहे हैं कि सरजमीन फलस्तीन एक बार फिर अपने हकीकी वारसों के कब्जे कुदरत में होगी और यहूदी अपनी बदआमालियों के बायस एक बार फिर दुनिया में जिल्लत व मस्किनत का निशाने इबरत होंगे इंशाअल्लाह ताला। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।